हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क। सेकंड है सॉवरियन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स ऑन पीपल्स विल। थर्ड है डेमोक्रेटिक, Constitution does not recognize legal supremacy of another country. And fourth one is secular. State is without any religion of its own. इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ वन। Secular states do not have a state religion, for example, an established religion, or an equivalent, although the absence of an established state religion does not necessarily imply that a state is fully secular or egalitarian in all respects. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in first option है the speech by Jawaharlal Nehru on the banks of Ravi when he called for Purna Swaraj. थर्ड है द नेहरू रिपोर्ट, सॉरी सेकंड है, थर्ड ऑप्शन है a resolution adopted at Karachi session of the Indian National Congress. फोर्थ वन है the objectives resolution adopted by the Constituent Assembly. क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेकंड फंडामेंटल राइट्स, थर्ड प्रेम्बल्स एंड फोर्थ वन इज सिटीजनशिप। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आती है, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। The preamble, a preface of the Constitution, contains the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. It reflects the ideology, dreams, and grand vision of makers of the Constitution. The next question is question number 4. Which of the following determines that the Indian Constitution is federal? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Which of the following determines that the Indian Constitution is federal? First option, a written and rigid constitution, an independent judiciary. Third one is vesting of residuary powers with the center. Fourth one is distribution of powers between the center and the states. कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द Indian Constitution is federal? Distribution of powers between the center and states. A federal system is one. A federal system is one where the power resides between the center and states. Thus, the existence of center and states is a main feature of federalism. India has a synthesis of both systems, the unitary and the federal. Some features such as rigid constitutions, strong center, emergency provisions, single citizenship, etc. But the distribution of powers between center and states signify the future of federalism. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the Indian Constitution is regarded as, first option federal, second unitary, third parliamentary, fourth federal in form and unitary in spirit. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, federal in form and unitary in spirit. The Constitution is considered federal in nature and unitary in spirit.
federal in nature and unity in spirit. It has features of a federal. It has features of a federation, including a codified supreme constitution, a three-tier governmental structure, center, state, and local. इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए. ए थ्री टायर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, वो कौन से? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. डिवीजन ऑफ पावर्स, बाइकैमरलिज्म एंड एन independent judiciary. Move to the next question. What is the next question? Question number 6. Under which article of the Constitution are the cultural and educational rights granted? Under which article of the Constitution are the cultural and educational rights are granted? First option Article 2931. Second option है Article 2932. थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 2930. फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 3031. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 2930. किस में आता है? कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 and 30. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स enriched in the Constitution of India, and articles 29 and 30 deals with the cultural and educational rights of Indian citizens. These fundamental rights intends to preserve the culture of all minority groups in India. Move to the next question. Next question is question number 7. Which of the following is not specifically mentioned in Article 19 of the Constitution? Very important. First option is freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms. Third, freedom to move freely. Fourth one is freedom of the press. क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस. इसमें क्या क्या आता है आर्टिकल 19 में देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड फ्रॉम द आर्टिकल 19 क्लास 1A सब क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर. सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आज की वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फोर्थ है नेचुरल राइट्स. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है फंडामेंटल राइट्स. किसमें आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स. This right comes under Article 32 of Supreme Court and Article 226 for the High Court. 32 for the Supreme Court and Article 226 for the High Court. It is known as the right to constitutional remedies. Next question देखते हैं. Next question है, if an Indian citizen is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental right is denied to him? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? If an Indian citizen is denied a public office because of his religion, अगर एक इंडियन सिटीजन डिनाई करता है एक पब्लिक ऑफिस को इसकी रिलीजन की वजह से, which of the following article is denied to him? कौन से आर्टिकल इसको डिनाई करता है? कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम, सेकंड ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू इक्वालिटी. आपको लगा होगा थर्ड ऑप्शन सही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये नहीं है, राइट टू इक्वालिटी. इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड ए पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ही इज बीइंग डिनाइड हिज फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 किस में आता है ये? आर्टिकल 14 of the Indian Constitution embodies the right to equality expressed in the preamble. किसमें है? preamble में भी दिया हुआ है. It lays down the general principles of equality before law and prohibits
unreasonable discrimination between the persons. Article 15 relates to prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. देखिए इसमें सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वन बाय वन करके, सभी आर्टिकल्स भी कवर हो रहे हैं, तो वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई है वो भी पहले प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें भी देखिए आर्टिकल 14 भी कवर हो गया, 15 भी हो गया, आर्टिकल 19 पे भी डिस्कस हुई। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी काज्ड बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी काज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट, थर्ड है इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन, फोर्थ है फाइनेंशियल क्राइसिस। कब आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है इमरजेंसी के टाइम? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन continues till the end of the emergency. But according to the 44th Amendment, freedoms to listen in Article 19 can be suspended only in case of proclamation on the ground of war or external aggression. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एम्प्लाइज। फर्स्ट ऑप्शन है sovereignty of the people, second है equality of opportunity of for all, third है limited government, fourth है equality of all before law। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, limited government। The theory of fundamental right implies limited government. The theory of the fundamental right implies a limited government. Accordingly, they impose restrictions on the state. For example, the state cannot discriminate against citizens on grounds of caste, class, race, sex, religion, etc. कौन से आर्टिकल में आता है? अभी मैंने बताया था अगेंस्ट, ये किस में आता है? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एसेट्रा इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। फर्स्ट ऑप्शन है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड है द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फोर्थ वन है द राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है राइट टू इक्वालिटी। पहला पार्ट यही आता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स आर्टिकल 14 embodying the idea of equality expressed in the preamble. It lays down the general principle of equality before the law and prohibits unreasonable discrimination between the persons. Article 15 relates to prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। फर्स्ट ऑप्शन है इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, सेकंड है इन द हाई कोर्ट ओनली, थर्ड है आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, फोर्थ वन इज फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन इन द हाई कोर्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोई भी मामला हो जिसमें फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया हो, कैन बी प्रेजेंटेड। कहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है? इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, इन द हाई कोर्ट ओनली, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट, फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट और एंड देन इन द हाई कोर्ट। कौन सा ऑप्शन है?
पहले दो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आता है ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में दिखा देते हैं, आपको क्वेश्चन खुद ही समझ आ जाएगा। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड the judiciary has been vested with responsibility to act as guardian of these rights. The right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights is itself as guaranteed right as provided for in Article 32 of the Constitution. Right to constitutional remedies, Article 32 of the Constitution. Thus, whenever the state or any authority encroaches upon the rights of a person, the latter can move the Supreme Court and High Courts. These courts are empowered to issue directions and orders or writs for the enforcement of fundamental rights. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।